Okay. Okay, guys. So let's continue with the lecture series, right? I think we were discussing a question और शायद से वो lecture stop हो गया था, isn't it? lecture stop हो गया था. वो कौन सा question था? I think it was ये question number 2 था, I guess. And it is something related to tan. What was that? Tan square x plus 2 root 3 tan x plus 2 root 3 tan x is equal to 1. वो ये वाला क्वेश्चन था, है ना? तो व्हाट डिड वी डू बेसिकली? एक्चुअली क्या है कि यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन मेनी वेज. एक तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक जैसा आप इसको ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हो. या देयर इज एन इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन टू दिस कि वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन हियर. 2 root 3 tan x is equal to 1 minus tan square x. ठीक है, और ये शायद से अपना टाइप 4 है, isn't it? This is type 4 modified type, है ना? अच्छा, very funny. Anyway, and you could see that clearly. ये basically 2 tan x upon 1 minus tan square x is equal to 1 by root 3. This can be written this way. Why is it so? क्योंकि ये 2 tan x upon 1 minus tan square x is actually tan 2x. ठीक है, और tan 1 by root 3 कब होता है? tan 1 by root 3 कब होता है? pi upon 6 पे. ठीक है, अब देखो tan x is equal to tan alpha के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो सिंपली 2x is equal to n pi plus alpha. So x is n pi by 2 plus pi upon 12. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना अगेन मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अगर ये क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to 2 pi, है ना? सो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, isn't it? So this part is important, कि that we understand. ठीक है, so he is asking us to find number of solutions in the interval 0 to 2 pi for this. ठीक है, so obviously what we're going to do is we're going to start substituting values for n. So remember, we always start with 0. Why aren't we starting with -1 here, -2 etc.? क्योंकि you are interested in which interval? Positive interval. अच्छा, अगर ये नेगेटिव होता तो remember we तो वैसे भी put 0, at the same time we put +1 and then -1, +2 -2 and so on. ठीक है, so we got to be careful here. And remember, कोई भी क्वेश्चन ना मेंस में no question would be asked based on find the general solution. Impossible है. ठीक है, they will always ask you number of solutions are how many, है ना? तो ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है, so it's important that we understand this. We put n 0, x की वैल्यू आएगा pi upon 12. Put n is equal to 1. We get x is equal to pi upon 2 plus pi by 12. चलेगा ना ये? Put n is equal to 2. x is pi plus pi upon 12, ये भी चलेगा. Put n is equal to 3. x is 3 pi by 2 plus pi upon 12. Put n is equal to 4. x is 2 pi plus pi upon 12. ये नहीं चलेगा, isn't it? So how many solutions total? 1, 2, 3 and 4. So therefore number of solutions are 4. है ना? अगर ये क्वेश्चन होता कि find general solution, ये आंसर. Find number of solutions in this interval. So what do we do? Once you find general solution, put x की values. Sorry, put n की values and find corresponding values of x. ठीक है, so therefore number of solutions are 4. Right? Okay. अब आते हैं next question पे. Question number 3. Tan x plus tan 2x plus tan x into tan 2x is equal to 1. ठीक है. Okay. Now we see this is a very very interesting question. So the point is कि trigonometric functions के वक्त हमने कुछ standard results discuss किया, उनमें से एक है ये. वो result ये था कि if it was something like this: if a plus b is pi by 4, then it was something like tan a plus tan b plus tan a into tan b is equal to 1. ये एक रिजल्ट था. और दूसरा रिजल्ट ये था
कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो 1 + tan a * 1 + tan b is 2। शायद से हमने ये डिस्कस भी किया था रिवीजन क्लास में, isn't it? अच्छा, लेकिन तब बात ये है कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेमोराइज दीस मेनी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, इट्स प्रीटी डिफिकल्ट, है ना? अच्छा, देन व्हाट डू वी डू इन सच केसेस? वेरी सिंपल। यूजुअली क्या है, आपके पास tan a है, tan b भी है, और यहाँ देखो tan a * tan b है। So there is a very good chance कि you might be applying compound angle here, tan a + tan b + tan a * tan b। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि tan a * tan b ना उसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए। So anyway, उसके लिए हम क्या करें कि उसको ना RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे। So what do we get? Let's see. So tan x + tan 2x = अगर हम tan x tan 2x को RHS की तरफ शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1 - tan 2x * tan x। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। tan 2x + tan x upon 1 - tan 2x tan x = 1, isn't it? हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया। Now you see this is simple. We get a simple equation tan a + tan b upon 1 - tan a tan b, which is tan a + b। अच्छा, tan 1 कब होता है? π/4 पे। Therefore 3x is n pi + π/4, and ultimately x is equal to n pi upon 3 plus pi upon 12, where n belongs to integers. So anyway, they could have again asked us to find number of solutions in intervals 0 to 2 pi. Okay, so we again you see we put some values for n here. ठीक है, वो आप कर सकते हो anyway. Now okay, fine. So I'm going to give you a question as homework. ये आप लोग घर पे कर सकते हो। So the question is tan x plus tan 2x plus √3 into tan x into tan 2x is equal to √3। ठीक है, so what do you think we should be doing in this question? Same फंडा। So ये tan a tan b वाला टर्म को ना हम RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे and then simply take √3 कॉमन। आपको ना √3 कॉमन लेना होगा। Once you take √3 कॉमन, 1 - tan x tan b को वापस आपको नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा। So everything is same except that यहाँ 1 की जगह √3 है, 1 की जगह √3। ठीक है, बाकी सब सेम है, तो you will be able to find general solution pretty easily। ठीक है, now since we were discussing tan वाला क्वेश्चन, एक exceptional क्वेश्चन है, वो क्या है, let's see। Question goes this way कि tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 3x into tan 2x is equal to 1। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ये शायद से अपना वर्कशीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा लेट्स सी व्हाट वी यूजुअली डू हियर, है ना? व्हाट इज द टिपिकल और जनरल सॉल्यूशन टू दिस? वेरी सिंपल। ये देखो, आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा कि ये tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b के फॉर्म में है, which is tan a minus b, tan a minus b। तो tan x, सॉरी ये कितना आएगा? ये tan 3x minus 2x है। tan x is equal to tan pi/4, माने x is n pi plus pi/4, where n belongs to integers, है ना? अच्छा, अब बेसिकली क्या है, नाउ से फॉर एग्जांपल व्हेन यू पुट n is equal to 0, what do we get? x is equal to pi/4. Put n is equal to 1, we get x is equal to pi plus pi/4, which is 3 pi/4 and so on. So these are the solutions in interval 0 to 2 pi। आप और भी solutions find कर सकते हैं, isn't it? अच्छा, अब बात यह है कि usually जब equation में ना tan होता है, we have to be extra careful। Now look at the options। अगर options में ना none of these होता या no solution होता, then you know this is a interesting case, right? I mean आपको सोचना पड़ेगा, none of these या no solution वाला ऑप्शन है तो इमीडिएट आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशंस है ना
ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या वापस, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। अब देखो अगर x पाई बाय 4 होता तो देखो यहाँ tan 2x है, देखो यहाँ x पाई बाय 4 अगर यहाँ रखेंगे इक्वेशन में रखेंगे तो ये देखो tan 2x है, तो ये हो जाएगा tan x पाई बाय 4 है, x is pi by 4, so 2x will be pi by 2, and remember tan pi by 2 is infinity, तो ये देखो एक्सप्रेशन में ना इंफिनिटी आ गया, अगर एक्सप्रेशन में इंफिनिटी आ गया उसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन नहीं माना जाता है, इसका मतलब ये पाई बाय 4, अच्छा तो ये 3 पाई बाय 4 एक्सेप्टेबल है क्या यहाँ, पुट 3 पाई बाय 4, तो ये tan 3 पाई बाय 2 होगा, है ना। इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 2 आएगा, 2x अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 आएगा, माने इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे पाई बाय 2 के मल्टीपल्स होंगे, ऑड मल्टीपल्स होंगे, वो ये इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, so no solution for this case, why is it so, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये गिवन इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करते, है ना। अच्छा ये जनरली कब होता है, जनरली ये जब इक्वेशन में ना tan होता, राइट, और वो भी अगर पाई बाय 2 हो रहा उसका मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ओके। एनीवे तो ये हो गया आपका टाइप 4 व्हिच इज मॉडिफाइड टाइप, है ना। अब आते हैं टाइप 5 और 6, नाउ दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना, probably most important portion of this entire chapter, right, okay, let's see. So right now type 5 sum to product or we just write type 5 factorization, है ना, ये बेटर करेगा। फैक्टराइजेशन का मतलब ऑफ कोर्स रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फैक्टराइज करना जरूरी है, लेकिन इसमें ना वी स्पेसिफिकली अप्लाई फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, है ना, एक काम करेंगे हम इसको लिखेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा इसमें ना दो प्रकार के क्वेश्चंस है, रिमेंबर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में देयर वर टू टाइप्स, इजंट इट, सम या डिफरेंस टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे पहले इसमें हम पहले करेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, sin m theta plus sin n theta is equal to 0. Number 2, sin x plus sin 2x plus sin 3x is 0. Sin 2x plus sin 4x plus sin 6x is 0. Cos x plus cos 3x minus 2 cos 2x 0. Cos 7x sin 7x is equal to sin 4x minus sin x.
मतलब इसका इंटरवल भी दे रखा है, नेक्स्ट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अच्छा ये देखो, इन सबका ना आपको सॉल्यूशंस ढूंढना है 0 टू 2 पाई में, ठीक है। सो विल मेक दिस अ हैबिट, विल नॉट ओनली फाइंड जनरल सॉल्यूशन, विल आल्सो ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई, है ना। तो बाद में एक आध क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम नेगेटिव साइड भी फोकस करेंगे। Okay, let's look at these questions first. Now let's look at the first question. So you see it is pretty obvious. We have sin m theta plus sin n theta 0. So what do we do? Of course, you see हमने रिवीजन में इतना हमने इस पर डिस्कस किया, तो आपको ना ऐसे स्ट्राइक होना चाहिए आइडिया। तो क्लियरली इट्स इन व्हाट फॉर्म? Exactly, sin c plus sin d. So what is sin c plus sin d? 2 sin, है ना, c plus d by 2. अच्छा यहाँ थीटा लिया हमने, अच्छा मेक इट x. It's only discussed in terms of x, है ना, क्योंकि मेन्स में they rarely use theta, है ना, mostly they go for x. अच्छा 2 sin c plus d mx plus nx upon 2 into cos nx upon 2 is equal to 0, isn't it? अच्छा अब ये देखो, अब क्या ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है, बस ये 0 या वो 0। अच्छा 2 तो 0 नहीं हो सकता, मैंने क्लियरली ये साइन वाला पार्टी which is m plus n by 2 into x is 0, और cos वाला पार्टी cos m minus n by 2 into x is 0। अच्छा पहली बात, साइन 0 कब होता है, इसका क्या जनरल सॉल्यूशन था? n पाई। लेकिन यहाँ हम n यूज कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि n ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो शायद से हमने बोर्ड्स के वक्त भी किया था ना ऐसे एक दो क्वेश्चन। यहाँ हम यूज करेंगे p, q एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो साइन 0 कब होता है? जब n plus n by 2 into x is p पाई, है ना। तो अल्टीमेटली x क्या हो जाएगा? 2p पाई अपॉन n plus n, where p is an integer। और या cos 0 कब होता है? जब x जो है where is cos 0, है ना, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अच्छा रिमेंबर यहाँ हमने p यूज कर लिया, तो शायद से आपको यहाँ q यूज करना होगा, या p भी यूज कर सकते हो, लेकिन कीप दिस इन माइंड, ये वाला p अलग है और वो वाला p अलग रहेगा। या just to avoid confusion you can take q as well, q right better, so 2q plus 1 into pi by 2। अच्छा ये 2 और 2 कटेगा, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू आएगा 2q plus 1 into pi upon n minus n, where q is an integer। ठीक है, this was quite simple anyway। अच्छा तो ये हो गया दो टर्म्स में, प्रीटी सिंपल है ना, बस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करो, फैक्टराइज हो जाएगा सीधा। अच्छा सेकंड और थर्ड में से हम एक क्वेश्चन करेंगे, कौन सा करें? चलो हम सेकंड करेंगे, आई लाइक टू ट्राई थर्ड एज वेल। थर्ड आपको करना होगा, इनमें से भी शायद से हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाकी के आप कर सकते हो घर पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा यूजुअली व्हाट डू वी डू इन सच केसेस व्हेन वी हैव थ्री टर्म्स? Usually we, I mean almost always we go for first and last, है ना। अच्छा and remember when you apply sin c plus sin d या cos c plus cos d, make sure कि the greatest angle comes first। तो आपको ना पहले rearrange करना होगा, we have to rearrange, and how do we rearrange? We write it this way, पहले sin 3x plus sin x plus sin 2x is equal to 0, ठीक है। अच्छा now what do we do? sin c plus sin d इन दोनों के बीच में, तो ये क्या होगा? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 प्लस ये वैसे की वैसे sin 2x is equal to 0, ठीक है। अच्छा ये देखो ये 2 ये आ रहा है 2x और ये cos x plus sin 2x, क्लियरली इनमें से sin 2x कॉमन निकलेगा, isn't it? When you take sin 2x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो क्लियरली या sin 2x 0 या ये वाला पार्ट इज 0, माने cos x इज -1/2। ठीक है, अच्छा नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। sin 0 कब होता है? जब x इज n pi, माने x इज n pi upon 2। ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वो तो है। व्हाट अबाउट दिस वन? cos -1/2 कब होता है? अच्छा, cos का सॉल्यूशन तो है 2n pi प्लस माइनस, आपको ढूंढना पड़ेगा कि cos -1/2 कब होगा, है ना? स्मॉलेस्ट cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट 1/2 कब होता है? पाई बाय 3 पे। और रिमेंबर सेकंड क्वाड्रेंट का होता है पाई माइनस थीटा, इजंट इट? थीटा पाई बाय 3 है पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला होगा पाई माइनस थीटा व्हिच इज 2 पाई बाय 3। राइट, ये आ रहा है आंसर। अच्छा, अब ये देखो, दिस वुड बी योर प्रोबेबली सीटी लेवल क्वेश्चन। अब इसको ना यू नो इफ यू वांट टू इंक्रीज द डिफिकल्टी क्वेश्चन या और इसको बढ़ाना है, so he'll probably ask you to find number of solutions in the interval 0 to 2 pi। उसके लिए आपको क्या करना होगा? we need to substitute the values of n here, isn't it? जैसे कि we put n0 के लिए x कितना आ रहा है? 0 चलेगा। put n is equal to 1, x की वैल्यू pi by 2। put n is equal to 2, x की वैल्यू pi। similarly put n is equal to 3, put n is equal to 3, what do we get? x की वैल्यू 3 pi by 2, ये भी चलेगा। put n is equal to 4, x की वैल्यू 2 pi। so I say this is where we stop, isn't it? for this कितने सॉल्यूशंस आए? 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसके लिए बात करें, put n is equal to 0। अब ये देखो, when you put n0, x की दो वैल्यूज आ रहे हैं प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, लेकिन अपना पॉजिटिव इंटरवल चाहिए अपने को सिर्फ, तो हम सिर्फ कंसीडर करेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाला, x is 2 पाई बाय 2। put n is equal to 1, 2 पाई, एक आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 और दूसरा 2 पाई प्लस पाई बाय 3, लेकिन वो नेगलेक्ट हो जाएगा, माने x की वैल्यू होगी 5 पाई अपॉन, बस यही है क्या? अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ यू पुट n is equal to 3, सॉरी n is equal to 2 2 4 पाई, बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, इफ यू पुट n is equal to नेगेटिव क्या होगा? -1 डालेंगे तो कुछ होगा, देखो -2 पाई, हाँ वो भी एकदम बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया, आपने को सिर्फ पॉजिटिव इंटरवल ही चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल कितने सॉल्यूशंस थे इसमें? 7 सॉल्यूशंस। हाँ, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। अब ये देखो, एक्चुअली क्या है कि सिंस cos is -1/2, आपको ना इस केस में इसके लिए जनरल सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं था, है ना? 0 to 2 पाई का मतलब दो ही सॉल्यूशंस निकले इसलिए। हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट, इजंट इट? जनरल सॉल्यूशन निकाला, फिर वैल्यूज डाला, यू नो दिस इज फूलिशनेस, इजंट इट? इसका कोई जरूरत ही नहीं था, मैंने एकदम उल्टा वाला काम हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा cos x -1/2 x रहा, इट इज ऑलवेज बेटर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 2x था, 3x 2x x/2, जब वो ऐसा रहेगा ना, देन प्रिंसिपल सॉरी जनरल सॉल्यूशन निकाल के फिर वैल्यूज डालना बेटर होगा। लेकिन यहाँ अगर cos x -1/2 अगर सिर्फ और सिर्फ x ही होता, गो फॉर डायरेक्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। सो गाइस, ट्राई थर्ड क्वेश्चन एज होमवर्क। तो 5th 6th और 7th में से हम इसके ना लॉजिक डिस्कस करेंगे, फिर बाकी रेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 4th हो जाएगा तो इजी है। 4th क्या करें? cos c प्लस cos d हो जाएगा, फिर शायद से cos 2x कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा आई गेस। तो एनीवे, सो प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 एज होमवर्क। अच्छा, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5? 5 में क्या करें? कुछ cos है कुछ sin है, चलो लेट्स ट्राई 5th, 5th ट्राई करें। Okay. Let's try question number 5. अच्छा, क्या है? cos 7x
is equal to cos x minus sin 4x. Okay, so what do you think we should do? It is pretty obvious again. पूरा इक्वेशन में ना तीन टर्म है, दो cos के है, so obviously factorization, लेकिन they're on either side. So what are we supposed to do? Probably we'll bring all of them on one side. हाँ, वो better रहेगा शायद से, is it? तो सबको बुलाएंगे LHS की तरफ, है ना? अच्छा, अब देखो cos c minus cos d. cos c minus cos d का क्या फॉर्मूला था? है ना? 2 sin c plus d, which is c plus d, है ना? 8x by 2 is 4x into sin, remember d minus c होगा, तो instead we could also go for minus 2 sin c plus d by 2, c minus d by 2, c minus d 6x by 2 dx, और यहाँ प्लस sin 4x is equal to 0. अच्छा, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा? करेक्ट, sin 4x जब कॉमन निकलेगा है ना, 1 minus 2 sin 3x is equal to 0. अच्छा, तो इसका मतलब sin 4x 0 या sin 3x 1. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे इसके लिए, है ना? अच्छा, और ये तो साइन में आ गया n पाई प्लस वाला. ओके, ठीक है. अच्छा, ये 0 कब होता है? n पाई पे, माने x इज n पाई अपॉन, ठीक है, इसलिए ये हो गया. एंड रिमेंबर साइन x का जनरल क्या फॉर्मूला था? रिमेंबर आई थिंक काफी दिनों के बाद हम ये अप्लाई कर रहे हैं साइन वाला फॉर्मूला. क्या है? 3x इज n पाई प्लस रेज़ टू n इनटू अल्फा. अच्छा, sin 1/2 कब होता है? पाई बाय 6 पे, माने पाई अपॉन 6, माने x कितना रहेगा? n पाई बाय 3 प्लस माइनस रेज़ टू n इनटू पाई अपॉन 18. अपने इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम चेक करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to पाई, है ना? राइट, तो हम इसको सिर्फ 0 to पाई में चेक करेंगे. अच्छा, सो व्हाट डू वी डू? पहले इसलिए चेक करेंगे. पुट n इज इक्वल टू 0, n 0 के लिए x इज इक्वल टू 0 चलेगा. 0 क्लोज्ड है, बी केयरफुल यार, है ना, क्लोज्ड है कि ओपन है. अच्छा, n इज इक्वल टू 1 के लिए x इज पाई बाय 4 चलेगा. n इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 चलेगा. n इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 ये भी चलेगा. n इज इक्वल टू 4 कैंसिल पाई. तो कितने सॉल्यूशंस आ रहे? 5 सॉल्यूशन. तो यहाँ आ गए 5. रिमेंबर अगर 2 पाई तक क्या रहेगा? ऑब्वियसली फिर आएगा कितना? 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 4, 2 पाई, 4 सॉल्यूशन और बढ़ेंगे. 9 यहाँ हो गया, और ये देखो ये भी बाकी है. तो यूजुअली अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस आए ना तो इंटरवल छोटा इंटरवल रहेगा, ठीक है? अच्छा, इसलिए देखो इसमें भी काफी सॉल्यूशंस होंगे शायद से, इसलिए देखो इंटरवल क्या है इसका? तो सिर्फ 0 to पाई बाय 2 है, वो भी देखो 0 और पाई बाय 2 ओपन है ना? अच्छा, अब बात करेंगे इसके बारे में. इसलिए कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? पुट n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू, अच्छा जनरली साइन वाला इसमें ना कि ये -1 वाला थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज करेगा. तो अपने को पहले ही एक काम करना होगा. एक काम करेंगे हम n को 2 इसमें डिवाइड करेंगे. यहाँ मान लो n इवन और यहाँ n ऑड. n इवन का मतलब रिमेंबर वी स्टार्ट विद 0, इमीडिएटली n 2, n 4. ऑड के लिए 1, 3, 5 एंड सो ऑन. इसलिए अच्छा, रिमेंबर when we are looking at even वाला पार्ट, तो x क्या रहेगा? n पाई बाय 3. अब ये देखो n since n is even, -1 will be absorbed, नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा, माने ये सिर्फ रहेगा पाई अपॉन 18. और के लिए x रहेगा n पाई बाय 3 माइनस पाई अपॉन 18, ठीक है? अच्छा, चलो फटाफट वैल्यू जानेंगे. n 0 के लिए x की वैल्यू पाई अपॉन 18, n 2 के लिए 2 पाई बाय 3 प्लस पाई अपॉन 8. अच्छा, ये काउंट होगा क्या?
यहाँ 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 13 पाई बाय 18 चलेगा, है ना? अच्छा, पुट n इक्वल टू 4, तो ये 4 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 18, ये देखो ये ऑलरेडी अपने आप में पाई से बड़ा है 4 पाई बाय 3, इसका मतलब ये वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है? तो ये 0 और ये चलेगा, ये दोनों। और अब आते हैं यहाँ x इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 18, ये चलेगा? पुट n इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई बाय 18, ये भी चलेगा? 17 पाई बाय 18 आ जाएगा। और n इज इक्वल टू 5 का ये नहीं चलेगा गाइस, क्यों? 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 30 पाई माइनस 1 पाई 29 पाई बाय 18, दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन 5, isn't it? तो ये वाला नहीं चलेगा। तो कितने सॉल्यूशंस? 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 9, राइट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हो ऑन योर ओन, राइट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करें? 3 टर्म्स है तो सबको एलएचएस की तरफ शिफ्ट किया और sin c प्लस sin d किसके बीच में अप्लाई करें? फैक्टराइजेशन, बिगर एंड स्मॉलर यूजुअली 7x और x के बीच में, बट रिमेंबर यू नीड टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टू लेफ्ट हैंड साइड। एंड रिमेंबर कोई ऐसा साइन का जनरल सॉल्यूशन आया ना, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव डन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पहले इसको स्प्लिट कर लो इवन में और ऑड में, इसके हिसाब से इनके वैल्यू लगाओ, ठीक है? राइट? सो अब देखो ये थे 3 टर्म्स वाले, अब हम करेंगे 4 टर्म्स वाले, ठीक है? विल बी डिस्कसिंग 4 टर्म्स।